from Agartala, I beg your pardon, where the mortal remains of Angel Chakma has been brought from the airport. From here, the mortal remains of this 24-year-old student who was stabbed to death in Dehradun will be taken to Tripura. He succumbed to his injuries on Thursday morning, that is 2 days ago, after battling for life for more than 2 weeks following a brutal knife attack in Uttarakhand. The incident has now triggered widespread outrage and renewed concerns over the safety of students from the northeast and other parts of the country. Angel Chakma, he was an MBA student. Him and his brother were attacked by 6 assailants with knives on the 9th of December in Dehradun. Following the assault, Angel was rushed to the hospital where he remained admitted in the intensive care unit since the day of the incident. Despite sustained medical intervention, his condition deteriorated and he breathed his last in the early hours of this morning. On your screens now are the visuals that we are getting in from Agartala Airport, and giving us more details will be my colleague Anirudh, who joins us live from Guwahati. Anirudh, tell us what's happening on ground as we speak. Yes, the mortal remains of Angel Chakma has reached Agartala, and from there it will be taken from the Agartala airport. It will be taken to his native place in Agartala's Nandanpur. It may be mentioned that this is not the first time that such incident has been reported from North India, where racial slur or racially discriminating comments have been made from someone from the northeast. Earlier also there have been multiple such occasions. But yes, in this particular case, if we see, Angel Chakma was brutally attacked on 9th of December, and from 9th of December till 26th, there was no, measure taken by the police or authorities to arrest the main accused or the accused who were involved in this crime. It was only after the death of Angel Chakma that, and due to public pressure that was mounted through various social media platforms as well, that the Uttarakhand police acted and 5 of them were arrested. But the main accused in this case, Yagya Awasthi, is still absconding. There are also allegations coming in that using the influential position in the society, the main accused, Yagya Awasthi, and his accomplices are, have tried to avoid the arrest of police. They have been trying to use the, social glamour to get away with a heinous crime that they have committed, and this has particularly sparked a lot of angst against this discrimination here in the Northeast. Right, Anirudh, I request you to stay on with me as we keep a track of those latest visuals that are coming in. Meanwhile, viewers, let's quickly get you a background of what we know so far. 24-year-old Angel Chakma, he died after he was stabbed in Uttarakhand's capital, that is Dehradun, for objecting to racial abuse. These 5 assailants, who are now in police custody, referred to him and his brother as Chinese, and when he objected, they were stabbed. Angel sustained fatal injuries and he fought for his life for 17 whole days in hospital, while his brother, who's now out of hospital but has sustained critical injuries. The police, as we said, has arrested 5 people so far in connection with the murder, while one accused, who's a Nepali national, managed to cross the border. According to the police case that has now been filed on the basis of Chakma's brother Michael, they had gone to market on the evening of 9th of December. Let's go back to our colleague. I'm being told that Ratan Negi is joining us live from Dehradun, where this incident occurred. Ratan, हमें बताइए इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, मैं इस वक्त देहरादून के सिलोगई बाजार में मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर वाइन शॉप है जहाँ पर चकमा
यानी कि त्रिपुरा के छात्र के साथ झगड़ा हुआ था। ये सड़क मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वो झगड़ा हुआ था। ये वो स्थान है जहाँ पर झगड़ा हुआ था। 9 दिसंबर की वो बात है, 9 दिसंबर वहाँ पर झगड़ा हुआ था। स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए किस तरह से यहाँ पर झगड़ा हुआ था? मेरा नाम आर.के. पांडे है और शाम लगभग 5 बजे का टाइम था और कुछ छात्र आए, आपस में कहा-सुनी लगने लगे। फिर रोड पे वहाँ से नज़दीक ला करके फिर आपस में मारामारी हुई, जिसमें कुछ लोग जो है अंदर से धारदार हथियार से भी और कुछ वैसे भी प्रयोग किए, जिसके कारण से वो घायल हो गया और फिर सीएससी भेजा गया। उसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। उसके बाद जांच के दौरान में फिर अपना विभाग ही बता सकता है। हाँ तो देखिए, मैं आपको वो स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ पर झगड़ा, ये देखिए खाली स्थान सेलाकोई का ये जगह, यहाँ पर वो झगड़ा हुआ था। यहाँ पर लगातार 5 जो छात्र थे, 6 उनकी संख्या बताई 5 है, जहाँ पर वो झगड़ा किया। त्रिपुरा का जो छात्र चकमा वो और उसके भाई का यहाँ पर देखिए बाजार है, वो सामान लेने यहाँ पर 9 दिसंबर की बात को सामान लेने इस बाजार में आए थे। ये देहरादून का सेलाकोई का बाजार है और शाम का वक्त था। इसी बाजार पर झगड़ा लगातार बढ़ते बढ़ते आगे आया और ये खाली स्थान जहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी खाली स्थान पर वो झगड़ा बढ़ा और यहाँ पर चाकू से लगातार चकमा पर वार किया गया, उसके भाई पर कड़े से वार किया गया। उसके बाद वो घायल हुआ। घायल होने के बाद उसे यहाँ से एक निजी अस्पताल ले आया गया। 17 दिनों तक जिंदगी से वो जंग लड़ता रहा और शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई। ये सेलाकोई का बाजार है। आसपास के जो लोग हैं वो उसमें इस वक्त दुकान बढ़ाकर यहाँ से जा रहे थे। इसमें पूरे प्रकरण में अब हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। एक व्यक्ति जो इसमें से बचा, जो जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, इसलिए ये झगड़ा यहाँ पर इतना बढ़ गया था, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। अब बहरहाल चकमा को उसके परिजन जो है वो यहाँ देहरादून से रवाना शुक्रवार को हो गए थे और काफी दुख उन्होंने इस घटना पर जताया था। साथ ही उत्तराखंड पुलिस लगातार इस घटनाक्रम की लगातार जांच कर रही है और जो एक व्यक्ति अभी तक लापता है जो है उसकी तलाश की जा रही है। हत्या की धाराओं में धारा बढ़ा, इस पूरे केस में हत्या की धारा लगातार बढ़ा दी गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार 14 तारीख को किया जा चुका था और जो एक व्यक्ति है उसे भी गिरफ्तार करने का प्रयास लगातार उत्तराखंड की पुलिस कर रही है और अन्य पहलुओं पर भी लगातार जांच कर रही है। जी ऑल राइट रतन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिरुद्ध, आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग अस द लेटेस्ट डिटेल्स एज वी कीप अ क्लोज वॉच ऑन द स्टोरी। व्यूअर्स, बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स गेट यू द आई विटनेस अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट। टेक अ लुक। वेरी अनफॉर्चुनेट, जो एंजल चकमा एंड माइकल चकमा, वो लोग 2 भाई देहरादून यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे थे। तो क्या हुआ, माइकल और एंजल कुछ सामान खरीदने के लिए वो मार्केट में गया था। तो जब सामान खरीद के वो लोग लौट रहे थे उनकी रेस्टोरेंट पे, तो कुछ गुंडा देहरादून का उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट चेहरा दे के चाइनीज, चिंकी, मिंकी, मोमो ऐसे बोल रहे थे। तो माइकल बाइक से उधर के उन लोगों को घेरने जा रहे थे। तो भैया आप लोग ऐसे मत बोलो, हम भी इंडियन है, हम लोग को चाइनीज मत बोलो, हम लोग को चिंकी मत बोलो। तो ऐसे कहने से डायरेक्ट अटैक कर दिया वो गुंडों ने माइकल को। तो माइकल को अटैक देख कर एंजल बाइक से उतर के गया, तो फिर से एंजल को वो लोग अटैक किया। अटैक करते करते ऐसा हुआ, बाद में चाकू छोड़ दिया एंजल को। तो यही कहना चाहता हूँ, ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के ऊपर इतना क्या प्रॉब्लम है। तो हम भी तो इंडियन है ना, तो हम लोग का नेशनलिटी इंडियन ही लगती है। तो हम लोग को देखे वो लोग चाइनीज, चिंकी मिंकी ऐसा बोलना ठीक है क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट इंडिया को, ये जो इंसिडेंट हुआ ना, उनको थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमेशा अटैक होता है। नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ने जाता है, कलकत्ता में पढ़ने जाता है, देहरादून में पढ़ने जाता है, तो हम लोग के ऊपर ऐसा ही कमेंट्स आता है, ऐसा ही हम लोग के अगेंस्ट होता है।